friends. Now we had started with the use dimension analysis. Dimension analysis is an approach or method of solving problems in physics using dimensions. Now after that we started with the use of dimension analysis, in which we took the first use, checking the dimensional validity of a given equation. An equation was given and we checked whether the equation is dimensionally correct or not. In that we did certain sums regarding checking the validity. We took some based on that already the equation is dimensionally valid, then find the dimensional equation of the unknowns in it. I hope you are comfortable with those sums. Now we move on to the next use of the dimension analysis. In the second use, what we do is we obtain relation of a physical quantity with other quantities, and here we relate a given quantity with other quantities. In this we are doing one sum. In your textbook on page 33 there is illustration 2.17. अब ये illustration क्या बोलता है वो समझते हैं. In this illustration there is a simple pendulum given. Simple pendulum क्या होता है? From a rigid support a string is suspended and below which a metallic sphere, solid sphere, is attached, and this is capable of oscillating like this in the vertical plane. This is the string, this is the bob, this is called the bob, which oscillates. Now here it is said that when the bob is made to oscillate from one end to another end and returning back to the same end, that makes one complete oscillation of the pendulum. तो एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लगता है? The time taken for moving from one end to other end and returning back to the same end, that the time is called periodic time. Time taken for one oscillation is called periodic time. It is found that this periodic time, as per the question, this periodic time is found to be depending on length of the pendulum. Pendulum की length पे depend करता है. दूसरा depends on the mass of the bob, bob के mass पे, and thirdly it depends on the gravitational acceleration at that position. उस पोजीशन पे g की वैल्यू क्या है, उस पे तीन चीजों पे डिपेंड करता है. यानी t depends on length, depends on mass, depends on gravitational acceleration. ये हमको डेटा दिया हुआ है एंड बोला है कि ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर t in terms of L, M and G. L is the length of the pendulum, M is the mass of the bob, G is the gravitational acceleration. ये पूछा हुआ है सामने. यानी we have to relate a quantity called periodic time with length, mass and gravitational acceleration. इनको रिलेट करके we have to obtain the formula for it. ये इस यूज का पर्पस है. होप यू आर क्लियर अबाउट द टारगेट व्हाट वी हैव टू डू. इस यूज में क्या करना है, किसी एक क्वांटिटी का रिलेशन दूसरी क्वांटिटीज के साथ लाना है, किसी एक क्वांटिटी का रिलेशन दूसरी क्वांटिटीज के साथ लाना है. ना ऐसे सब में अप्रोच कैसे करेंगे? इन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे विल बी गिवन इन द theoretical form. The data will be given in theoretical form that t depends on length of the pendulum, t depends on mass of the bob, t depends on the gravitational acceleration. ऐसा वर्डिंग में दिया होगा तो उसको मैथमेटिकल फॉर्म में पहले लेते हैं. t proportional to L, t proportional to M, t proportional to G. अब इनका प्रोपोर्शनलिटी कैसा है? चलो L के साथ सोचे तो is it directly proportional to L or is it proportional to L square or is it proportional to L cube, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L क्यूब, या फिर इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट L. क्या है माजरा? कौन सा क्या रिलेशन आएगा वो नहीं बताया. हाँ t डिपेंड्स ऑन L इतना बोले, बट व्हाट इज द डिपेंडेंस वो नहीं बताया. इसलिए हमें वो ढूंढना पड़ेगा क्या डिपेंडेंस है. इसलिए हम क्या करते हैं, t इज प्रोपोर्शनल टू L रेज़ टू पावर a. सिमिलरली m के लिए पावर b बोल देते हैं, g के लिए पावर c बोल देते हैं. हमारे लिए a b c अननोन हो गए जिन्हें हमें ढूंढना है. तो ऑब्टेन द रिलेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c. इसलिए जो भी डिपेंडेंस है क्वांटिटी का, जिस चीज पे डिपेंडेंस है उसके पावर a b और c कर दो, पहला स्टेप. दूसरे स्टेप में इन तीनों का कंबाइंड वेरिएशन लेते हैं. तो t प्रोपोर्शनल टू L रेज़ टू a, m रेज़ टू b, g रेज़ टू c. ये हो गया, तीनों को कंबाइन कर दिया. प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, कांस्टेंट लगाएं, तो वी प्लेस अ कांस्टेंट k, L रेज़ टू a, m रेज़ टू b, g रेज़ टू c. लेट्स से इक्वेशन 1 वेयर ये नया इंट्रोड्यूस किया हुआ k क्या है, k इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यानी दिस इज अ कांस्टेंट ड्यू टू प्रोपोर्शनलिटी. ओके, ये k ले लिया. अब आगे बढ़े तो हमें व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज वैल्यू ऑफ a b एंड c.
इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड मान के बैठना है। ओके, ये जो रिलेशन, क्योंकि रिलेशन वाला में इन पे डिपेंड करता है, उसके ऊपर जहां तक पहुंचे। अब ये पहला स्टेप हुआ, कंबाइंड वेरिएशन का दूसरा स्टेप हो गया, इक्वल टू में आ गए। नाउ डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एलएचएस, डायमेंशनल इक्वेशन एलएचएस क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है इक्वेशन में, टाइम, तो टाइम पे लेके लिखेंगे m0 l0 t1। फिर लेते हैं डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ आरएचएस, आरएचएस में क्या है, पहला k है, k इज प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। बी वेरी मच केयरफुल एंड रिमेंबर इट वेरी वेल, एज फार एज दिस यूज इज कंसर्न, k is to be taken dimensionless, k को हमेशा डायमेंशनलेस लेना है, यानी m0 l0 t0 आएगा, इट्स ऑलवेज टू बी टेकन डायमेंशनलेस, एंड ये इसकी एक लिमिटेशन भी बन जाएगी इस मेथड की। चलो आरएचएस में क्या आएगा, पहला k m0 l0 t0, फिर दूसरा लेंथ है m0 l1 t0 का पावर a है, फिर मास, मास के लिखेंगे m1 l0 t0 का पावर b, फिर g दैट इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन m0 l1 t minus 2 रेज टू पावर c। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो रेशनल इंडेक्सेस का यूज भी आ जाएगा यहाँ पे। m का पावर कितना होगा, तो देखो 0 है यहाँ पे, फिर ये 0 इंटू ए अगेन 0, 1 इंटू बी, बी आएगा यहाँ 0 इंटू सी, तो अगेन 0, m का पावर भी ओनली b, 0 प्लस b इंटू 1 b एंड यहाँ पे 0। फिर l का पावर क्या आता है, यहाँ पे 0 है a, फिर 0 एंड यहाँ पे c प्लस c, एंड t का पावर क्या हो जाएगा, t का पावर भी 0 0 0 माइनस 2c। ओके, होप यू रिमेंबर x रेज टू m इंटू एक्स रेज टू m इज इक्वल टू एक्स रेज टू m प्लस n, ये दोनों पावर ऐड होते हैं, ये तो पता होगा। दूसरा x रेज टू m ब्रैकेट के बाहर अगर n है, जैसे यहाँ पे हो रहा है माइनस 2 ब्रैकेट के बाद c है, तो दिस विल बी x रेज टू m इंटू n, तो माइनस 2c हो गया। ओके, अब आगे एज इक्वेशन वन इज डायमेंशनली करेक्ट, इन दोनों पे इक्वेट कर देते हैं। So equation being dimensionally correct, we write dimensional equation of 1 equal to dimensional equation of LHS equal to dimensional equation of RHS. As equation 1 is dimensionally valid, dimensional equation of LHS is equal to dimensional equation of RHS। ओके, तो LHS में क्या आया था हमारे पास, m0 l0 t1, m0 l0 t1, एंड RHS में क्या आया, m रेज टू b l रेज टू a प्लस c t रेज टू माइनस 2c। ओके, नाउ कंपेयरिंग पावर्स ऑफ same quantity, comparing powers of same quantity, what we have is m का power b equal to 0, पहला इक्वेशन बनेगा। see as we have three basic quantities m l t, so you get three equations, पहला मिला b equal to 0, दूसरा l का पावर a plus c is equal to 0, एंड तीसरा t का पावर minus 2c equal to 1। Now here we can clearly say that c is equal to minus 1 by 2, b तो 0 आ चुका है ना, इस इक्वेशन से a will be equal to minus c, negative c, and therefore it will be plus half, c यहाँ से ले लिया, तो thus what we get is a equal to half, so what we have is a is equal to 1 by 2, b equal to 0 and c equal to minus half, बराबर है, एंड ऑल्सो k is equal to 2 pi, ये गिवन हो सम में, क्वेश्चन में दिया होगा, proportionally constants will always be given in the question, k 2 pi, using in equation 1,
तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, t इक्वल टू k की वैल्यू 2 पाई रखी, l का पावर a इज हाफ, l का पावर a हाफ, m का पावर b, b कितना है 0, तो m रेज टू 0, g का पावर c, c इज -1/2। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखे तो 2 पाई l रेज टू हाफ, m रेज टू 0 तो 1 हो गया, तो गया, एंड g रेज टू पावर नेगेटिव है तो उसको नीचे भेज दे। नाउ दिस विल बी 2 पाई l बाई g, रेज टू पावर सेम है इसलिए उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, एंड रेज टू हाफ मींस स्क्वायर रूट, सो दिस विल बी रिटन एज 2 पाई अंडर रूट l बाई g। तो देयरफॉर व्हाट वी गेट इज t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। ये सिंपल पेंडुलम के लिए प्रोडक्ट टाइम का फॉर्मूला हो गया। We were just given t depending on length, mass and gravitational acceleration. Using this data, we obtain the formula. So this is one of the method of obtaining the formula. We'll be using it in the last chapter also. So ये method याद रखना खास। इसमें be very careful. Method is very important. Quantity दिया हुआ है relating with 3 other quantities. Combined variation कर लिया, power ABC खास पहले रखा, combined variation equal to ला दिया, constant introduce कर दिया, फिर LHS RHS के डायमेंशनल इक्वेशन को इक्वेट किया, पावर्स m के l के और t के कंपेयर किया, एंड गेटिंग द अननोन्स a b and c, वो मिल गया, बाद में इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो एंड द वर्क इज ओवर। आई विल एडवाइस यू टू पॉज द वीडियो, कॉपी इट डाउन एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। सो फ्रेंड्स, you might have copied down the first sum, and while copying you might have kept a note of the steps which were involved in it, how to obtain that. See, the values or the quantities doesn't matter, how you do the sum is more important। इससे if you are still unclear, go back, replay the part and see the numerical once again, क्योंकि अभी मैंने आपके लिए दूसरा न्यूमेरिकल भी डाल दिया है। अच्छा, पहले ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। व्हाट इट इज गिवन, स्पीड v of sound wave in a medium depends on pressure P and density rho of the medium. Obtain formula for v. Take proportionality constant as 1। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया होगा ना। इधर फिर से एक बार आपको क्या पढ़ना है खास, स्पीड v द क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो प्रेशर p एंड दूसरा डेंसिटी रो। इट्स अ गुड लक दैट हियर दिस वन क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन 2 ओनली। आगे के क्वेश्चन में 3 थे, अब 2 ही है खाली। इट इज डिपेंडिंग ऑन p एज वेल एज रो, बराबर है। एंड बोले आपको v का फॉर्मूला लाना है इन दोनों के टर्म्स में। फर्दर यू आर गिवन दैट प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इज 1, ये आपको यूजुअली दिया होगा, बराबर। अब यहां पे वीडियो को पॉज कर ले, टेक 5 to 7 minutes, solve it by yourself, the method which we used in the previous sum, that's what you have to do, and solve it by yourself। भले कुछ भी हो, don't worry, just do it। जो भी आंसर है, it doesn't matter, we'll check the answer, okay। So pause the video, do the sum and then return back, I'll give you the complete solution। Now in the solution what happens, you are given that speed v डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, एक तो इलास्टिक कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर p, तो प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल P से, दिया हुआ है यहाँ पे, एंड दूसरा डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रो। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का रिलेशन ऑब्टेन करने से p को पावर a, रो को पावर b दे देते हैं, कंबाइंड वेरिएशन कर देते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हो, p रेज टू a, रो रेज टू b, सो v डिपेंड्स ऑन p रेज टू a, रो रेज टू b। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी हटाएं, कांस्टेंट लगाएं, तो v is equal to some constant k, p raised to a, rho raised to b। Let's say equation 1। Whenever you form this equation 1, always mention where k is proportionality constant, ये खास मेंशन करें। एंड इसके बारे में don't wait for its dimensional formula, you have to take it as dimensional, as m0 l0 t0, ये लिख ही देने का साथ में। See, your examiner will be expecting that you will be introducing this quantity k। k is a constant जिसको हमें डायमेंशनलेस देना है। फिर आगे चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वेशन। पहला तो रिलेशन बनाया, इक्वेशन ऑब्टेन कर लिया। अब डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ LHS, LHS का डायमेंशनल इक्वेशन क्या बनेगा, स्पीड है ना, m0 l1 t minus 1। See, whenever you are doing the sums, I will give you a liberty to use your table of dimensional equation। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हैंडी रखते हैं हम, एक 3 पेज लेके
लेट्स टेक अ प्रिंट पेज, नहीं एक नहीं, जो एक से ज्यादा प्रिंट पेज चलेंगे, उसके अंदर मेक द डायमेंशनल टेबल, डायमेंशनल इक्वेशन टेबल, जो टेबल हमने आगे डेवलप किया वो पूरा फिर से एक बार लिख डालो। ओके, पूरा अंदर सारी क्वांटिटीज भर के व्यवस्थित लिख डालो। तो व्हेनेवर यू आर डूइंग द सम यू कैन रेफर दैट, एंड ये टेबल आपका यूज होगा टिल एंड ऑफ 12th स्टैंडर्ड। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इसको अच्छी तरह से बना के प्रिजर्व कर लो ना। LHS का डायमेंशनल इक्वेशन स्पीड है, सही आ गया। अब RHS, तो डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ RHS इज, पहला तो K कांस्टेंट है, तो M0 L0 T0 दिया हुआ है, इट हैज टू बी टेकन डायमेंशनलेस। दूसरा प्रेशर P, अब प्रेशर P का डायमेंशनल इक्वेशन अगर टेबल में देखोगे ध्यान से तो M1 L-1 T-2 आता है, रेज टू पावर A। तीसरा डेंसिटी, तो डेंसिटी को अगर देखोगे तो भी M1 L-3 T0 रेज टू पावर P। चलो RHS को सिंप्लीफाई करें, तो M का पावर 0, ये 1 इंटू A, 1 इंटू B, M का पावर A प्लस B हो गया। फिर L का पावर 0 या माइनस A माइनस 3B, અને T का पावर 0 माइनस 2A, ये तो 0 हो गया, ये आ गया डायमेंशनल इक्वेशन RHS। फिर एज इक्वेशन 1 is dimensionally valid, dimensional equation of LHS is equal to dimensional equation of RHS। ओके, अब LHS क्या है, तो M0 L1 T-1। फिर RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला M रेज टू A प्लस B, L रेज टू माइनस A माइनस 3B, T रेज टू माइनस 2A, ये हो गया। फर्दर अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ सेम क्वांटिटीज, सेम क्वांटिटीज के पावर को कंपेयर करते हैं क्योंकि इक्वल टू है बीच में, इसलिए पावर भी सेम रहेंगे। तो पहले M के लिए यहाँ पे 0, यहाँ A प्लस B, तो A प्लस B इक्वल टू 0। दूसरा L का पावर माइनस A माइनस 3B इक्वल टू 1। तीसरा पावर माइनस 2A इक्वल टू माइनस 1। हमें टारगेट क्या है, A ने भी ऑब्टेन करना है, तो देखिए तीनों में से सबसे सिंपली यहाँ पे A मिल जाएगा, रेज टू हाफ मिला। दूसरा B चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, तो B इक्वल टू माइनस A एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस हाफ। तो A और B दोनों मिल गए, तो सही तीसरे क्वेश्चन का क्या करने का, वी डोंट वांट एनीथिंग, A और B तो मिल गया, फिर क्यों तीसरे में जाना है, नो नीड टू गो फॉर। पर सर वेरीफाई तो करो करना हो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मांगा नहीं है तो अननेसेसरी उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है ना। बट नेक्स्ट स्टेप इज thus A equal to half, B equal to minus half and constant K equal to 1, ये कहां से है, V1 है, in equation 1, इक्वेशन में तो V क्या हो गया, K की वैल्यू 1 है, प्रेशर का पावर A यानी हाफ, डेंसिटी का पावर माइनस हाफ, तो दिस विल बी P रेज टू हाफ अपॉन डेंसिटी का रो रेज टू हाफ, नीचे ले गए तो माइनस प्लस हो गया, तो दोनों में हाफ कॉमन निकल गया, तो रेज टू पावर हाफ, हाफ यानी रूट, तो V का फॉर्मूला हो गया रूट P बाय रो। दिस हाउ यू गेट द रिलेशन। ये दूसरा सम एग्जैक्टली सेम लाइन एंड लेंथ पे, ओनली डिफरेंस में तीन क्वांटिटी सी यहाँ दो ही है, तो ए बी या ए बी एंड सी तीन अननोन हो सकते हैं। हाँ, मेजॉरिटी पार्ट यू विल सी दैट यहाँ तक you will be fine. Comparing the power you will get these equations. The further portion will be to solve these equations. अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग 10 तक सीखे हुए, तो 10 का हमें वही नॉलेज चाहिए, सॉल्विंग पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशंस ऑफ अननोन वेरिएबल्स, बस वो सॉल्व करना कर लो तो आपका काम खत्म हो गया। ओके, यहाँ तक फिजिक्स है, इससे आगे मैथ्स है। क्लियर? कॉपी इट डाउन। लेट्स हैव वन मोर सम फॉर प्रैक्टिस। यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके कॉपी आउट करो क्वेश्चन को,
फिर बाद में हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। सेंटीपिटल फोर्स F acting on a particle moving on a circular path depends on mass m of the particle, speed v of the particle and radius r of circular path. Obtain an expression for F. Take proportionality constant as 1. ये क्वेश्चन है, कॉपी आउट कर लो, फिर बाद में हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। You might have copied out the question. You might have read it twice. Solve it by yourself. Pause the video for a while, 5 to 7 minutes. Solve it by yourself. Get the relation, and then check with what I am doing. Verify your solution with what I am doing on the board. यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि F force acting on a particle is dependent on mass of the particle, speed of the particle, and तीसरा radius of circular path. ये तीन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है फोर्स। तो लिख देते हैं A m raised to a, v raised to b, r raised to c. ये हो गया तीन। Combining these three, F proportional to m raised to a, v raised to b, r raised to c. Proportionality हटाते हैं तो F is equal to some constant k into m raised to a, v raised to b, r raised to c. Let's say equation number 1. Okay, यहाँ खास मेंशन करें where k is proportionality constant. देखो मैं हर बार लिख रहा हूँ, मतलब आपको भी लिखना है। एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, सो m0 l0 t0 इसका डायमेंशन इक्वेशन कर लेते हैं। ओके, देन व्हाट वी डू इज, अगले स्टेप में चलते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ LHS। LHS में क्या दिया, फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन m1 l1 t -2, ये फोर्स के लिए। फिर RHS के लिए डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ RHS। पहले डायमेंशनल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस m0 l0 t0 पहली क्वांटिटी। फिर मास वी नो वेरी वेल, m1 l0 t0 रेज टू a। फिर स्पीड के लिए हमको मालूम है m0 l1 t -1 रेज टू पावर b। एंड r रेडियस है, रेडियस का अगेन रेडियस इज अ लेंथ m0 l1 t0 raised to c। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो व्हाट वी गेट इज m raised to power 0, 1 into a, यहाँ 0 एंड यहाँ भी 0, तो m raised to power a आ गया। l raised to power 0, 0, b एंड c, तो b प्लस c। फिर t raised to power 0, 0 माइनस b एंड यहाँ कुछ नहीं है, तो माइनस बी। ये हो गया RHS का डायमेंशनल इक्वेशन। अब इसके बाद का स्टेप क्या बोलता है, एज इक्वेशन 1 इज डायमेंशनली वैलिड, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ LHS is equal to dimensional equation of RHS. Now LHS का डायमेंशनल इक्वेशन m1 l1 t -2 एंड RHS के लिए m raised to a, l raised to power b plus c, t raised to power minus b. Okay, comparing the power of same quantities, comparing powers of same quantities, what we have is, पहले m के पावर को कंपेयर करें तो a इक्वल टू 1। देखो ये तो डायरेक्टली आ गया, a तो मिल गया सीधा ही। दूसरा सेकेंड इक्वेशन b प्लस सी इक्वल टू 1, l का पावर कंपेयर किया, b प्लस सी कम्स आउट टू बी 1। फिर तीसरा पावर t का पावर माइनस b इक्वल टू -2, यानी b इक्वल टू 2 हो गया, ये भी मिल गया, a मिल गया, b मिल गया। अब c के लिए यहाँ पे देखें तो c इक्वल टू 1 माइनस b, ये b उधर जाएगा, तो दैट इज 1 माइनस b इज 2, सो दिस विल बी -1। ओके, तो thus a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -1 एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 दिया हुआ था गिवन इक्वेशन में। इन इक्वेशन 1
इन सबको रख देते हैं इक्वेशन 1 में, तो व्हाट वी गेट इज f इज इक्वल टू कांस्टेंट तो 1 है, m रेज टू पावर a यानी 1, v रेज टू पावर b यानी 2, c रेज टू पावर r रेज टू पावर c है तो रेज टू -1, तो ये r रेज टू -1 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r, ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। दिस हाउ वी गेट द रिलेशन। अब यहाँ पे हमने सॉल्यूशन कर दिया, लगातार 3 सम किए, तीन में मेथड इज सेम, सी क्वांटिटीज हैव चेंज, दिस पोर्शन हैज चेंज, अकॉर्डिंगली आंसर में चेंज आता है, बाकी मेथड एग्जैक्टली सेम टू सेम। इससे मेथड को बराबर फॉलो करना, उसके स्टेप्स बराबर स्टेप्स याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। वट एवर क्वांटिटीज अकॉर्डिंगली यू हैव टू चेंज द डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसमें एक वेरिएशन ऐसा हो सकता है कि अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दी हो, यानी k की वैल्यू दी नहीं है, नथिंग इज गिवन टू यू अबाउट k, तो व्हाट टू डू, यानी उस केस में व्हाट यू विल डू इज, इफ यू आर नॉट गिवन वैल्यू ऑफ k, दिस इज नॉट गिवन टू यू, तो क्या करोगे, तो यहां पर इसको इक्वेशन 1 नहीं बनाने का, इधर ही गाड़ी को रोक देने का, इक्वेशन 1 इसको बदलने का प्रोपोर्शनलिटी पे, क्योंकि k इज नॉट गिवन तो k को इंट्रोड्यूस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, बराबर है। तो ऐसे केस में आपका आंसर क्या बनेगा, f proportional to m raised to a, v raised to b, r raised to c, so therefore f proportional to m raised to 1, v raised to 2, r raised to -1, so in that case mv square by r इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट नहीं दिया है, तो प्रोपोर्शनल टू mv स्क्वायर बाय r, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कब, किस कंडीशन में, when k is not given to you, तो नो नीड टू वरी, इक्वेशन 1 इसको नहीं बनाने, इसके आगे के स्टेप को इसको इक्वेशन 1 बना दो एंड उसी में सब्स्टिट्यूशन करो एंड फिनिश, इससे ऐसा करना है, बराबर है। अब यहाँ पे हमने ये तीनों सम किए, और भी सम मैंने प्रैक्टिस में दिए हुए हैं, तो यू वर्कआउट दो सम्स। इसके ऊपर से इस मेथड के बारे में कुछ लिमिटेशंस हमारे हाथ में आती है कि वी आर एबल टू सॉल्व, नो डाउट द इक्वेशंस, वी आर एबल टू ऑब्टेन द इक्वेशंस, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। कौन से हैं, लेट्स सी नाउ। So friends, studying the dimension analysis method, we saw we are able to solve certain problems related to physics. एक तो we can check whether the given equation is valid or not. दूसरा we can obtain relation of a quantity with other quantities. चलो fine, it's very helpful. पर इस मेथड के भी कुछ limitations हैं। अब पहली limitation क्या बोलती है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, what we are doing is we are using dimension formula in terms of m, l and t. MLT 3 क्वांटिटीज है, 3 क्वांटिटीज के पावर अगर कंपेयर करें तो हमारे पास मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं। वी हैव 1, 2 and 3 क्वांटिटीज अवेलेबल फॉर कंपेयरिंग, सो वी कैन हैव 3 इक्वेशंस मैक्सिमम, 3 इक्वेशन मिलेंगे हमको। 3 इक्वेशन मिलेंगे तो मैथ्स का एक रूल है कि अगर आपके पास एक अननोन है, अननोन अगर एक है तो ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वेशंस रिक्वायर्ड इज ओनली 1, यानी कि समथिंग लाइक x प्लस 1 इक्वल टू 2, तो काफी है, x मिल जाएगा आपको। तो अगर एक ही वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल है, तो आपको एक इक्वेशन काफी है। इफ यू हैव 2 अननोन्स देन यू रिक्वायर 2 इक्वेशन, एज फॉर एग्जांपल x प्लस y इक्वल टू 2, बस इतने से नहीं होगा, यू नीड अनदर इक्वेशन x माइनस y इक्वल टू 3, बराबर है। सो व्हेन यू हैव 2 अननोन्स यू रिक्वायर 2 इक्वेशंस, यानी इसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं, जो हमने 10th में सॉल्व किए थे। ये हमने 9th में पढ़ा था, ये 10th में किया हुआ है, बराबर। अब अगर 3 वेरिएबल्स हो तो वी रिक्वायर 3 इक्वेशंस, 3 वेरिएबल्स हो तो 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, 2 इक्वेशन काफी नहीं है। इसलिए व्हाट द मैथ सेज, व्हाटएवर नंबर ऑफ अननोन्स यू हैव, इक्वल नंबर ऑफ इक्वेशंस यू रिक्वायर। इफ यू हैव 1 unknown, 1 equation required, 2 unknown, 2 equations, 3 unknown, 3 equations. Now here we can compare MLT, exponents of MLT only, यानी we can get 3 equations maximum। 3 इक्वेशन मिलेंगे तो हम लोग 3 अननोन ही ले सकते हैं, 3 अननोन ले सकते हैं, मतलब क्या हुआ, f प्रोपोर्शनल टू m रेज टू a, v रेज टू b, r रेज टू c, और चौथा थीटा रेज टू d करने गए तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 इक्वेशन मिलेंगे, 3 अननोन सॉल्व कर सकते हैं, 3 तक बराबर है, चौथे के बारे में नहीं ले सकते। तो वी कैन नॉट गेट अ रिलेशन ऑफ अ क्वांटिटी विद मोर देन 3 अदर क्वांटिटीज, वी कैन नॉट गेट अ रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी विद मोर देन 3, पॉसिबल नहीं है, चौथी क्वांटिटी यहाँ नहीं ले सकते। हाँ, अगर किसी ने क्वेश्चन में दिया
तो उधर पावर विल बी गिवन टू यू, तो अननोन नहीं रहेगा, अननोन तो ए बी और सी रहेंगे फिर। गॉट इट। तो 3 से ज्यादा क्वांटिटीज को रिलेट नहीं कर सकते विद अ गिवन क्वांटिटी। एक ये पहला लिमिटेशन इसका। कर सकते थे, वी कुड हैव डन, अगर यहाँ पे हम लोग के बी ले लेने, ए बी, के फॉर कैलन, ए फॉर एम्पियर ले लें, तो 5 क्वांटिटी तक जा सकते हैं। और फिर प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? 5 अननोन, 5 इक्वेशंस। हम ये तो 11 में पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने 10th में पढ़ लिया, ये 11 में पढ़ेंगे, ये तो पता नहीं कब पढ़ेंगे। सो सॉल्विंग मोर देन 3 इक्वेशंस टुगेदर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। इसलिए हमारा है, नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, पर हमारे लेवल में नहीं है, इसलिए वी आर नॉट एबल टू गो बियॉन्ड दिस। इसलिए बोलते हैं इसका लिमिटेशन हो जाता है, इट कैन टेक मैक्सिमम 3 बेस क्वांटिटीज, देयरफॉर इट कैन रिलेट अ गिवन क्वांटिटी विद नॉट मोर देन 3 क्वांटिटीज। 3 से ज्यादा क्वांटिटीज को रिलेट नहीं कर सकता, ये एक लिमिटेशन हो गई। दूसरी लिमिटेशन कि यहाँ पे हमने पहले से के को डायमेंशनलेस लिया हुआ है, पहले से मान के रखा है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, बट इट इज नॉट दैट ऑलवेज कांस्टेंट अपीयरिंग इन द इक्वेशन इज डायमेंशनलेस। कांस्टेंट का हमेशा डायमेंशनलेस होना जरूरी नहीं है। We have certain constants having dimensional equations. You can go to the table, you will find there will be certain constants like Stephen-Boltzmann constant, Joule constant. They are having equation units and dimensional equations. तो फिर ऐसे केस में अगर proportionality constant का dimensional equation है तो ये मेथड यूज नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बेसिकली लेके चलते हैं कि the proportionality constant is dimensionless. So this method does not work if proportionality constant is not dimensionless. अगर ये डायमेंशनलेस नहीं है तो नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, बराबर है। तीसरी बात यहां पर, द थर्ड लिमिटेशन, हियर वी आर एबल टू रिलेट द क्वांटिटीज हैविंग डायमेंशनल इक्वेशंस। तीसरा लिमिटेशन क्या बोलता है कि वी कैन नॉट रिलेट अ गिवन क्वांटिटी विद अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सपोज एंगल ले लेते हैं, एंगल का पावर ए ले लिया, तो एंगल का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? m0 l0 t0, डायमेंशनलेस है, इसलिए ये ए तो कहीं अपीयर नहीं करेगा, तीनों इक्वेशन में से कहीं नहीं आएगा। सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ रिलेशन ऑफ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो उसका पावर कभी अपीयर ही नहीं होगा, तो यू नेवर गेट द रिलेशन। इसलिए इक्वेशन इन्वॉल्विंग डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, यानी यू कैन नॉट रिलेट अ गिवन क्वांटिटी विद एनी अदर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ओके, रिलेशन नहीं होता ऐसा नहीं है, आई एम नॉट कमिटिंग दैट there cannot be a relation of a quantity with dimensions with another dimensionless quantity. A quantity cannot relate with dimensionless quantity, ऐसा नहीं है काफी फॉर्मूला हमारे पास ऐसे भी है जिसमें given quantity is related to a dimensionless quantity, पर ये मेथड उससे सॉल्व नहीं कर सकता। ये इस मेथड की लिमिटेशन है, रिलेशन नहीं है ऐसा नहीं, इट्स अ लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड, इट कैन नॉट रिलेट अ गिवन क्वांटिटी विद डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ओके, तो इसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटीज का रिलेशन नहीं ला सकते, क्लियर। ये तीसरा हो गया। चौथे में टाइप ऑफ फंक्शंस भी हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शंस। इन तीनों को इन्वॉल्व करते हुए इक्वेशंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन अगर इन्वॉल्व है तो द इक्वेशन कैन नॉट, so this method cannot help। क्यों ऐसा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन अगर इन्वॉल्व हो तो ऐसे केस में इट कैन नॉट वर्क। क्यों? क्योंकि these trigonometric functions are always pure numbers। pure number means they are dimensionless and we know dimensional quantities cannot be related। इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करते हुए इक्वेशन नहीं बना सकते। तुम बोलोगे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले इक्वेशन होते हैं? Yes, I'll give you a sample। 14 चैप्टर में आएगा y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। तो ये a sin थीटा वाला केस हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, ये रिलेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते डायमेंशनलेस मेथड से, इस मेथड से ये इक्वेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्लियर। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस e रेज टू पावर। अब e रेज टू पावर में भले कुछ भी हो, लेट्स से mv²/r, पर mv²/r का डायमेंशनल इक्वेशन है, पर e रेज टू पावर जब हो जाएगा, e इज अ स्टैंडर्ड बेस, इट्स अ प्योर नंबर, तो ऐसे केस में ऐसे फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन विद बेस e एंड पावर एज सम क्वांटिटी दैट आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये भी प्योर नंबर्स है, दीस आर आल्सो प्योर नंबर, सो डायमेंशनलेस। तो
तो इनका भी रिलेशन ऑप्टेन नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसे रिलेशन भी होते हैं। हाँ, 12th में एक चैप्टर में आएगा, नहीं सॉरी इसी 14 चैप्टर में फिर से आएगा, एम्पलीट्यूड AT इक्वल टू A0 e रेज़ टू माइनस BT/2 है। यहाँ B का भी डायमेंशन क्वेश्चन है, T टाइम का भी है, M मास का भी है, और ये बेस E है ना, it becomes a pure number. This whole thing becomes a pure number. So dimensionless quantity. So relation cannot be obtained. तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करता हो तो यानी log of something. तो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन को इन्वॉल्व करता है तो भी डायमेंशनलेस मेथड वहां पे काम नहीं आ सकता. So we cannot use dimensional analysis method for trigonometric, exponential and logarithmic functions. So due to these four limitations, dimensionless method is not a global method, but it's just limited to certain part type of functions only. ये limitation को ध्यान में रख के we find that we are doing only that portion of dimension analysis which we are able to digest. Okay, अब यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है. Fifth, the most important part, dimension is finished. Do all the practice work carefully. If in case of any doubt, just give me a call. And next we'll start with a chapter which will be more interesting for you.